Again, I want to tell you this class is for TGT, trained graduate teachers, and we are looking for a vacancy in 2022. We have started this class on time. Only I have delivered 2 lectures. And on behalf of JS English Literary Society, Allahabad, Muhammad Shami, welcome to all of you in my class. And second important thing, I have started, you can say, first I have taken what literary terms. Till now, I have delivered 2 lectures. In the very first lecture, I told you about theater of absurd, and I also told you how did it come, what are the basic features of theater of absurd or absurdism or absurdity. And in the second lecture, I told you about what aestheticism, aesthetic ideology, act, scene, and proscenium arch. In the very third lecture of literary terms, today I will deal with what affective fallacy, alienation effect, and allegory. I will try my best to cover these 3 words. इन तीनों words को मैं cover करूँगा. So let me share white board, and here you will get what? Here you will get some words you have to note down. Yeah. What today I have for you? Today I have for you affective fallacy. AFFECTIVE. Affective fallacy. FALLACY. Affective fallacy. When I talk about affective fallacy, you find कि affective fallacy एक ऐसा फ्रेज है, ये वर्ड ही नहीं बल्कि ये वर्ड नहीं, एक फ्रेज है. इसके बारे में सबसे पहले जिन्होंने बात किया था W.K. Wimsatt and Monroe C. Bartley. Here I would like to write the first word, the first point. In an essay published in 1946, PUBLISHED, published in 1946, W.K. Wimsatt and Monroe C. Bartley Monroe C. BEARDSLEY Monroe C. Bartley defined the affective fallacy. Defined the affective fallacy defined the affective fallacy as the error ERROR, as the error of evaluating a poem by its effect by its effects especially its emotional effects. EIONAL, especially its emotional effects. EFFECTS किसके ऊपर? अपॉन द रीडर. अभी आप नोट कर लीजिए, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे. अपॉन द रीडर,
Yeah, and so here you find what? Here you find, I would like to go one important point. Second important point, the two critics, the two critics, the two critics wrote in direct, wrote in direct, the two critics wrote in direct reaction to the view, reaction to the view VIEW of I.A. Richards, I.A. Richards, of I.A. Richards, I.A. Richards, principles of literary criticism, I.A. Richards, principles of literary criticism, CISM is the name of the book, and many times this point has been asked. 1923, then you find and second important point, there is also the spirit of objective criticism. But I would like to डिस्कस किया, यहीं तक ही मैं आपसे बात करूंगा। मैं फिर से चलता हूं। I just want to tell you कि today what the phrase I have taken affective fallacy। यहाँ से टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, यूजीसी नेट में भी दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि अफेक्टिव फाइलेसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। अफेक्टिव फाइलेसी का कॉन्सेप्ट जो है एक एसे में आया है, इन एन एसे पब्लिश्ड इन 1946, पब्लिश्ड इन 1946। तो अफेक्टिव फाइलेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक एसे में आया है, और वह एसे कब पब्लिश हुआ है? 1946 में, एक फाइल पब्लिश्ड इन 1946। उस एसे को पब्लिश करने वाले दो क्रिटिक्स थे, लिखने वाले कौन कौन से थे? एक तो W.K. Wimsatt, W.K. Wimsatt, WIMSATT, W.K. Wimsatt and Monroe C. Beardsley. Monroe C. Beardsley. You have to remember these two names. You have to remember these two names. You can't leave these two names. इन 1946 एसे आता है, और उस एसे का नाम है उस एसे को W.K. Wimsatt एंड मॉनरो सी बार्टली ने लिखा था, और उन्होंने डिफाइन किया, क्या चीज डिफाइन किया? डिफाइंड द अफेक्टिव फाइलेसी। और क्या डिफाइन किया कि अफेक्टिव फाइलेसी इज व्हाट इज एरर ऑफ एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ पोयम बाय इट्स इफेक्ट्स। फिर से ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज अफेक्टिव फाइलेसी? अफेक्टिव फाइलेसी इज व्हाट द एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ पोयम। एरर का मतलब होता है कि मिस्टेक, इवेल्युएट का मतलब होता है जज करना। अफेक्टिव फैलेसी का मतलब जब आप किसी पोयम को इवेल्युएट करते हैं, जज करते हैं,
जैसे अगर आप क्रिटिक हैं, अगर आप टीचर हैं, तो एक पोयम को आप क्या करेंगे, स्पेशली पढ़ेंगे या क्लासरूम में आप उसको रिसाइट कर रहे हैं, तो बच्चे बैठे हुए हैं, वे सुन रहे हैं, तो उस पोयम को पढ़ते समय आप क्या करते हैं, उसमें मिस्टेक देखते हैं, एरर करते हैं, एज द एरर ऑफ इवेल्युएटिंग, एज द एरर, कि क्या मिस्टेक हो रहा है, क्या उसमें गलतियां हो रही, क्या उसका वीक पॉइंट है, एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ पोयम। जब आप एक पोयम को जज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, और किसके आधार पर इवेल्युएट करते हैं, उसके इफेक्ट के आधार पर, इस पोयम को जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो रीडर पढ़ रहा है, इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, किसके ऊपर इसका इफेक्ट है, इसका इफेक्ट, और कौन सा इफेक्ट, इमोशनल इफेक्ट, स्पेशली इट्स इमोशनल इफेक्ट, इसका भावनात्मक प्रभाव जो है रीडर पर क्या पड़ रहा है, और कहां पर पड़ रहा है, इट्स अपॉन द रीडर। ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अफेक्टिव फैलेसी इज अ फ्रेज which was introduced, coined, you can say, by the two critics W.K. Wimsatt, Monroe C. Beardsley, और कब, 1946 में उन्होंने इस पे ये देखा कि जो पोयम होता है, अफेक्टिव फैलेसी में ये चीज दिखा जाता है, उन्होंने डिफाइन किया कि डिफाइन अफेक्टिव फैलेसी एज द एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ पोयम बाय इट्स इफेक्ट, स्पेशली इट्स इमोशनल इफेक्ट अपॉन द रीडर, कि इसका आखिर इमोशनल इफेक्ट क्या पड़ रहा है रीडर पर, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अफेक्टिव फैलेसी। और उसका उसका सबसे बड़ा चीज क्या होता है, उसका सबसे बड़ा चीज, हाँ एक चीज और, दूसरा चीज ये है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता, उसको मैं बताऊंगा। दूसरा चीज की, ये जो दोनों क्रिटिक्स थे, इन दोनों क्रिटिक्स ने ये बातें जो लिखी है, किसके अगेंस्ट में लिखी है, द टू क्रिटिक्स wrote indirectly, perhaps there was the word, the two critics wrote indirect, sorry not indirect, indirect reaction, इन अलग है, डायरेक्ट अलग, इनडायरेक्ट रिएक्शन। इन दोनों क्रिटिक्स ने एक रिएक्शन लिया था, किसके अगेंस्ट में लिखा हुआ था, आई ए रिचर्ड्स के खिलाफ। उनकी एक किताब आई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये आपको बिल्कुल रट लेना है, अगर आप इसे नहीं रट पाते हैं तो समझिए कि आई ए रिचर्ड्स एक बड़े आदमी है, बड़े क्रिटिक है। उनकी किताब का क्या नाम है, उनकी किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, आई ए रिचर्ड्स, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। So I would like to tell you, if you go with this point, कौन सा पॉइंट अगर आप जाते हैं, वह पॉइंट ये है कि आई ए रिचर्ड्स है, उनका किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दैट केम इन 1923। हियर यू फाइंड कि इस किताब के में जो दिया गया था, वो क्या था, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ता है पोयम का, उसको लेकर के लिखा गया था। तो इस किताब के अगेंस्ट में ये चीजें लिखी गई हैं। सो दो बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जो आई ए रिचर्ड्स की किताब है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इसमें क्या देखने की कोशिश की गई थी, साइकोलॉजिकल, यू कैन से कि द वैल्यू ऑफ अ पोयम कैन बी मेजर्ड बाय द साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। इस किताब में जो बात की गई थी, द वैल्यू, VALUE, the value of a poem can be measured, MEASURED, can be measured, कैसे measured किया जा सकता है, the value of a poem can be measured by the psychological responses, by the psychological psychological responses, RESPONSES, psychological responses
किसका साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज? साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, इट इंसाइट्स इन रीडर्स, इट इंसाइट्स इन रीडर्स। जो आई ए रिचर्ड्स थे उनका मानना था कि पोयम को जो मीजर किया जा सकता है, पोयम को जो इवेल्युएट किया जा सकता है, वह इमोशनल इफेक्ट ना हो करके, बल्कि क्या है, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिया था। कौन सा रिस्पॉन्स? साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ये किसका रिस्पॉन्स? रीडर का। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इट इंसाइट्स इन रीडर्स। डब्ल्यू के विमसेट एंड मोनरो सी बर्सली ने जो रिस्पॉन्स दिया वो कौन सा रिस्पॉन्स है? इमोशनल इफेक्ट, इट्स इमोशनल इफेक्ट अपॉन द रीडर। तो दो इफेक्ट की बात है, एक तो इमोशनल इफेक्ट और एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। देन यू कम टू नो देन उसके बाद एक और चीज है, जब आप जो है क्या करते हैं कि इमोशनल इफेक्ट की बात करते हैं, तो इमोशनल इफेक्ट को जब आप ढूंढते हैं तो वहां से दो चीजें गायब हो जाती है। वह कौन सी चीजें गायब हो जाती हैं? कि द पोयम इज स्पेशली अ, यू कैन से कि क्रिटिकल जजमेंट की पोयम का, द पोयम इटसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिकली क्रिटिकल जजमेंट टेंड्स टू डिसअपियर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, अभी मैं इसको और एक बार आपको बताऊंगा। तीसरा पॉइंट हो गया, नेक्स्ट चौथा पॉइंट, इफ समवन जजेस, JUDGES, judges or evaluates, EVALUATS, evaluates a poem on the basis of, its emotional effect, its emotional effect, EWFECT, effect upon the reader, it means, what it means? It means one is, it means it means one is giving, one is giving value to, one is giving value to impressionism and relativism. Pressure, IMPRESSIONISM, impressionism and relativism. relativism, ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, इम्प्रेशनिज्म एंड रिलेटिविज्म। और ये करता क्या है, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, वो क्या होता है? दैट इज द पोयम, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, द पोयम loses its value as an object। या दीज आर द पॉइंट्स। मैं इन सारे पॉइंट्स को जो है क्या करूंगा कि फिर से मैं आपको बताऊंगा, और मैं एक एक पॉइंट को ले चल रहा हूं, क्योंकि ये चीजें तो समझ में आ गई किसने प्रोपाउंड किया, क्या किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ है जो आपको ध्यान में रखना है।
Again, I'm telling here कि what the words I have taken affective fallacy. ये मैंने बताया कि ये phrase है. This affective fallacy has been asked in TGT, PGT, UGC NET कई जगहों पे. Most probably whatever the examination you are going to appear. अब अगर affective fallacy हमें समझना है तो उससे रिलेटेड 4-5 पॉइंट हमें समझना होगा, क्योंकि अब लिटरेरी टर्म्स में केवल ये नहीं पूछता कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, किस किताब में इंट्रोड्यूस किया, बल्कि अब लिटरेरी टर्म इस तरह से पूछा जाने लगा है कि उसके क्या क्या 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हर आदमी को ध्यान में रखना चाहिए. जैसे लास्ट ईयर ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मीमांस, ट्रेवलॉग वगैरह से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे गए थे. उन्हीं में से एक पॉइंट ये है कि अफेक्टिव फैलेसी इन एन एसे पब्लिश्ड, एक एसे जो कि पब्लिश्ड हुआ, कब पब्लिश हुआ, इन 1946, 1946 में एक एसे पब्लिश हुआ था, और वह एसे खुद अफेक्टिव फैलेसी के ही नाम से था. उस एसे के राइटर कौन से थे? W.K. विम्जाट एंड मॉनरो सी बर्ड्सली. मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि हु वर द टू क्रिटिक्स? हु वर द टू क्रिटिक्स? डब्ल्यू के W के और W.K. विम्जाट एंड मॉनरो सी बर्ड्सली, उनका एसे 1946 में आता है. उन्होंने डिफाइन किया. इसका मतलब ये हुआ कि अफेक्टिव फैलेसी का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज गिवन बाय W.K. विम्जाट एंड मॉनरो सी बर्ड्सली. दे डिफाइंड व्हाट? दे डिफाइंड द अफेक्टिव फैलेसी. उन्होंने अफेक्टिव फैलेसी को डिफाइन किया. कैसे डिफाइन किया? द इरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ पोयम. उन्होंने कहा कि द इरर, उसकी जो अफेक्टिव फैलेसी है, उसके माध्यम से हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम क्या गलतियां कर रहे हैं, कौन सा एरर कर रहे हैं. एरर का मतलब क्या होता है? मिस्टेक. द एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ पोयम. एक पोयम को जब हम जज करते हैं, जब हम इवेल्युएट करते हैं, बीइंग अ क्रिटिक, तो हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ एरर करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स पाते हैं. और जो वो एरर होता है वो किसके आधार पे उन्होंने कहा किया जाता है? इट्स इफेक्ट. कि अगर आप रीडर हैं, अगर आप टीचर हैं, क्लासरूम में हैं, अगर आप क्रिटिक हैं, आप पोयम को पढ़ रहे हैं, पोयम को रिसाइट कर रहे हैं, तो सर्टेन है कि उस पोयम का असर आपके ऊपर भी पड़ेगा और उस पोयम का असर रीडर के ऊपर भी पड़ेगा. लेकिन जो है अफेक्टिव फैलेसी में ये देखा जाता है कि पोयम का इफेक्ट क्या पड़ा, किसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ा, कौन सा इफेक्ट? इट्स इमोशनल इफेक्ट. कौन सा इफेक्ट? इमोशनल इफेक्ट. किसके ऊपर पड़ा? अपॉन द रीडर. हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि पोयम का इमोशनल इफेक्ट रीडर के ऊपर क्या पड़ा, और हम उससे जज करने की कोशिश करते हैं. जब हम उसे जज करने की कोशिश करते हैं, उसका इमोशनल इफेक्ट, देन वी कम टू नो व्हाट? वी कम टू नो द टू क्रिटिक्स रोट इन डायरेक्ट रिएक्शन. जो दोनों क्रिटिक्स है, उन्होंने एक तरह से क्या किया, ये चीजें लिखा. किसके अगेंस्ट में लिखा है? एक रिएक्शन आई ए रिचर्ड्स. अब आई ए रिचर्ड्स क्या है? मॉडर्न एज के बड़े क्रिटिक हैं. उनकी किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. इस किताब का जिक्र यहाँ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस किताब में ये दिखाया गया है वैल्यू ऑफ अ पोयम कैन बी मेजर. तीसरा पॉइंट जो इसी किताब से रिलेटेड है, द वैल्यू ऑफ अ पोयम कैन बी मेजर्ड बाय साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस. वहां पे इमोशनल रिस्पॉन्सेस था, और यहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्सेस है? साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस. तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि पोयम को इवेल्युएट करते समय उसके साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आई ए रिचर्ड्स ने दिया था. किसमें दिया था? अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में दिया था. आई ए रिचर्ड्स पहले आए थे, उन्होंने उसको दिया. उसके बाद W.K. विम्सेट और मॉनरो सी बर्सली ने उसी के अगेंस्ट में इमोशनल इफेक्ट का रिस्पांस दिया, स्पेशली इट्स इमोशनल इफेक्ट का अपॉन द रीडर. और वो काम उन्होंने 1946 में किया. लेकिन इन दोनों में एक अंतर आता है. जब कोई आदमी जो है पोयम का इमोशनल इफेक्ट, आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस पोयम का
इमोशनल इफेक्ट रीडर पर क्या पड़ रहा है, तब आप क्या करते हैं, हम लोग केवल एक पॉइंट देखते हैं, क्या चीज, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इमोशनल इफेक्ट। तो इसका मतलब वी आर ट्राइंग टू जस्ट सी व्हाट वन इज गिविंग वैल्यू टू इम्प्रेशनिज्म। हम जो है केवल एक चीज को वैल्यू देते हैं, इम्प्रेशनिज्म को और रिलेटिविज्म को। ये दो शब्द है। इम्प्रेशनिज्म एक मूवमेंट है, मैं उसको पढ़ाऊंगा। इम्प्रेशन का मतलब ही होता है प्रभाव छोड़ना, या अगर आप ये कहते हैं कि आई वॉज मच इम्प्रेस्ड, इसका मतलब किसी ने आपके ऊपर प्रभाव छोड़ा, किसी से आप प्रभावित हुए। यू हैव बीन इम्प्रेस्ड, ऐसा नहीं आपने किसी को प्रभावित किया, बल्कि यू आर सेइंग दैट कि यू हैव बीन इम्प्रेस्ड। तो जो यहाँ पे इम्प्रेशनिज्म है, क्या चीज होता है, जब रीडर टेक्स्ट को पढ़ता है तो वह टेक्स्ट से प्रभावित होता है। तो हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को उतना महत्व ना दे। टेक्स्ट का मतलब कोई पोयम, जैसे अगर मैं ये पोयम ले लूं टिंटन अबे, टिंटन अबे किसकी पोयम है, वर्ड्सवर्थ की है। अब अगर वर्ड्सवर्थ का जो पोयम टिंटन अबे है, अगर मैं क्लासरूम में एक टीचर होने के नाते पढ़ाऊं और मैं ये देखूं कि इसका इमोशनल इफेक्ट रीडर पर क्या पड़ रहा है, तो हमारा सारा जो ध्यान होगा ये होगा कि इस पोयम का इमोशनल इफेक्ट रीडर पर क्या पड़ रहा है। हम क्या करेंगे, सारा चीज उसके इम्प्रेशन पर जाके देखेंगे और रिलेटिविज्म पे देखेंगे कि पोयम कैसे अपने आप को रिलेट कर रही है रीडर से, या रीडर कैसे कर रिलेट कर रहा है पोयम से। जो है हम पोयम का ओवरऑल एग्जिस्टेंस क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसको एक ऑब्जेक्ट मानने से इनकार कर देते हैं और उसका केवल इम्प्रेशनिज्म और रिलेटिविज्म के आधार पर उसको जज करने की कोशिश करते हैं। तो इसका एक निगेटिव पहलू आता है, वो क्या आता है कि द पोयम लॉसेज इट्स वैल्यू एज एन ऑब्जेक्ट। जो पोयम है वह हम ये देखते हैं कि उसका वैल्यू एक ऑब्जेक्ट के रूप में खत्म हो जाता है। इतनी सारी चीजें थी जो एक चीज को जानना जरूरी था। आई हियर वांट टू नो कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं या नहीं आई थी। Yes, sir. Clear. Yes, देयर आर sir. सो मेनी पीपल। सुहानी, यस सर, क्लियर है सर। सीमा, सब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। सर 4 पॉइंट क्लियर कर दीजिए एक बार और सर। यस यस सर, क्लियर। ओके। फोर्थ पॉइंट, जी सर 4 पॉइंट। ओके। फोर्थ पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी आदमी, कोई का मतलब जैसे डब्ल्यू के वेबसाइट की हमने बात किया, मोनरो सी बर्सली की बात किया, अगर वो जो है क्या करते हैं, इफ समवन जजेस, अगर कोई आदमी उनकी थियरी को, जिसको हम अफेक्टिव फैलेसी कह रहे हैं, अगर उसके आधार पे कोई आदमी किसी पोयम को जज करता है, और जज करते समय क्या देखता है, या जज करे या इवेल्युएट करे, किसको इवेल्युएट करे, पोयम को इवेल्युएट करे, किसकी बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इमोशनल इफेक्ट। किसके ऊपर इमोशनल इफेक्ट, अपॉन द रीडर। आप हमेशा देखिएगा, जब भी अफेक्टिव फैलेसी की मैं बात करूं तो आपको दो चीजें तुरंत माइंड में नॉक करना चाहिए, डब्ल्यू के विम्सैट एंड मोनरो सी बर्सली। ये दोनों क्रिटिक है जिन्होंने अफेक्टिव फैलेसी जो फ्रेज है इसको इंट्रोड्यूस किया, इसके बारे में बात किया अपने एक एसे में। वह एसे अफेक्टिव फैलेसी की नाम से आया, और कब आया था, 1946 में आया था। उन्होंने एक थियरी दे दी एक तरह से। अगर उस थियरी को लेकर के कोई आदमी किसी पोयम को क्या करता है, इवेल्युएट करता है, जज करता है, स्पेशली इट्स इमोशनल इफेक्ट अपॉन द रीडर, इट मीन्स, इसका मतलब हो जाएगा वन इज गिविंग वैल्यू। एक आदमी वैल्यू दे रहा है, किसको दे रहा है, इम्प्रेशनिज्म को वैल्यू दे रहा है, रिलेटिविज्म को वैल्यू दे रहा है। इम्प्रेशनिज्म और रिलेटिविज्म ये एक दो शब्द है जो ये दिखा रहे हैं, खास करके इस फ्रेज के कॉन्टेक्स्ट में, अफेक्टिव फैलेसी के कॉन्टेक्स्ट में, कि आखिर इसका इफेक्ट जो है रीडर पर कैसे पड़ा। इंप्रेशन माने होता है प्रभावित कर, मतलब होना। अफेक्ट का मतलब होता है कि प्रभावित करना जो है। अगर हम अफेक्ट और इफेक्ट को छोड़ करके केवल यहाँ इंप्रेशन की बात करें, तो एकदम ये इंडिकेट करता है कि इंप्रेशन किसी के ऊपर पड़ता है। तो
अब सवाल उठता है कि टेक्स्ट को जो पढ़ेगा, चाहे वो टेक्स्ट को रीडर पढ़ रहा हो, पोयम को कोई रीडर पढ़ रहा हो, पोयम को कोई राइटर पढ़ रहा हो, तो जब भी वो किसी चीज को पढ़ता तो इससे प्रभावित होता है। हम समाचार देखते हैं, प्रभावित होते हैं, हम मूवी देखते हैं तो प्रभावित होते हैं। तो जो समाचार है, जो मूवी है, उसी की का एक, अगर मैं कहूँ कि एक और रूप हमारे सामने रिटन फॉर्म में जो आता है, टेक्स्ट है, पोयम है, तमाम चीजें। तो वो पोयम हमें क्या करती, इम्प्रेस करती है। जब वो पोयम हमें इम्प्रेस करेगी तो हम केवल ये देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि ये पोयम है, बल्कि हमारा सारा ध्यान किस पर रहेगा कि ये पोयम जो है रीडर को कैसे प्रभावित करेगी, कौन सा पहलू है जिससे रीडर प्रभावित हो रहा है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, पोयम को सही ढंग से इवेल्युएट करने में कुछ ना कुछ एरर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ही पहलू को देख रहे हैं। वह कौन सा पहलू है? उसका इमोशनल इफेक्ट। ओनली वी आर सीइंग ओनली इट्स इमोशनल इफेक्ट, और वो इमोशनल इफेक्ट रीडर को कितना ज्यादा प्रभावित कर रहा है। फिर जो है एंड रिलेटिविज्म, हाउ द पोयम इज रिलेटेड टू द reader and how the reader is related to the poem, या what is the relationship between the poem and the reader। so दो aspect ही देखते हैं, और कुछ चीजों को हम देखना भूल जाते हैं कि इसका स्टैंजा फॉर्म क्या है, इसका वर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पे सिंबल क्या है, यहाँ पे इमेज क्या है, यहाँ पे और तमाम चीजें जो होती उसको हम भूल जाते हैं। जबकि आइए रिचर्ड जो आए थे, एक क्रिटिक, उन्होंने कहा कि पोयम को जब आप इस केवल इस मतलब अगर इस आधार पे ही देखा जाता है तो सबसे बड़ी गलती क्या की जाती है कि पोयम की जो एक आइडेंटिटी है, एक वो अलग ऑब्जेक्ट के रूप में है, हम उसको अपने माइंड से उतार देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये एक दूसरा पहलू है जो आपको ध्यान रखना। आई थिंक कि राजकुमार जी ने या किसी ने कहा था, राजकुमार जी, डिड यू गेट इट? सर क्लियर 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 सर। सर, थैंक यू सर। सर Thank you, sir. अगर साइकोलॉजिकली अगर इसे जज किया जाए तो फिर उसे भी एरर माना जाएगा क्या? नहीं, एरर नहीं माना जाता है। एक्चुअली में किसी भी पोयम को जो जज करने का है, वो कई तरह के तरीके हैं क्रिटिसिज्म में। साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, उसका इमोशनल भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल भी किससे रिलेटेड है? रीडर से ही रिलेटेड है। साइकोलॉजिकल में रीडर सेंटर में है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप ये बात करते हैं कि साइकोलॉजिकली में कौन सेंटर में? रीडर सेंटर में है। इमोशनल में क्या होता है? रीडर तो सेंटर में होता है, लेकिन ये देखने की कोशिश की जाती है कि इस पोयम का इमोशनल इफेक्ट रीडर पे क्या पड़ा। इमोशन भी कहाँ से निकल करके आ रही है? आप कह सकते हैं रीडर से आ रही है। साइकोलॉजी में भी हम किसकी साइकोलॉजी देखते हैं? रीडर की ही साइकोलॉजी देखते हैं कि उसमें क्या कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि आपको वहां पे उनका ये कहने का अर्थ था कि ये दोनों चीजें है तो, लेकिन साइकोलॉजिकल इफेक्ट में एक पोयम का ऑब्जेक्ट के रूप में अस्तित्व तो बचा रहता है। इमोशनल में हम ज्यादातर किसको तरजीह दे देते हैं? ज्यादातर जो हम तरजीह दे देते हैं, हम केवल और केवल आप कह सकते हैं कि इमोशनल इमोशनल एस्पेक्ट में आर्ग्यूमेंट हमारे पास नहीं आ पाता। जैसे एक चीज ये होता है, लोग ये कहते हैं कि अगर अक्सर आप अपनी लाइफ में सुनिए, लोग ये कहते हैं कि देखिए बेटा बेटी जो भी शब्द यूज करते हैं कि देखो जज्बातों से काम ना लेना, क्योंकि जब आप जज्बातों से कोई काम लेते हैं, जज्बात में आ जाते हैं, तो उस समय आपको दिल की आवाज तो सुनाई पड़ती है, लेकिन जो है आपको क्या होता है कि उस जज्बातों में आप बह जाते हैं। आपको वहां पे क्या चीज लॉस कर जाते हैं? वो आपका अपना आर्गूमेंट, आपका अपना रीजन, आपका अपना तर्क करने की क्षमता। तो जब आप इमोशनली किसी चीज को देखने की कोशिश करते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम ये होती है कि आप सही और बुरे का बहुत अच्छे ढंग से, या उसके वीक पॉइंट का या और एस्पेक्ट को लेकर के आप अच्छे ढंग से बात नहीं कर पाते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसीलिए उन्होंने इस चीज को लेकर के बातें रखी हुई है कि साइकोलॉजिकल इंप्रेशन मतलब एक इवेल्युएशन भी है, वो भी है, लेकिन आपका इमोशनल में पोयम की ऑब्जेक्टिविटी खत्म होती है और हम उसकी सब्जेक्टिविटी को ज्यादातर देखने की कोशिश करते हैं इमोशनल इफेक्ट में। इतना कंफर्म हो गया? हाँ सर, थैंक यू। या देखिए, एक बहुत सिंपल सा चीज है। अगर मैं एक आपको मैं एक नेक्स्ट इमेज में बना रहा हूं, आप ये समझिए कि ये हम सारे लोग जानते हैं कि ये क्या है? ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आप ये मान के चलिए कि
सेंटर में हमने रख दिया पोयम को, ठीक है। यहाँ पे हमने रख दिया इंस्ट्रक्टर या टीचर को, यहाँ पे हमने रख दिया रीडर को। अब जब टीचर जो है क्या कर रहा है, पोयम को पढ़ रहा है, टीचर भी आप कह सकते हैं और क्रिटिक कह सकते हैं, यहाँ पे आप क्रिटिक भी कह दीजिए। अब टीचर या क्रिटिक जो है किसको किसको इवेल्युएट कर रहा है, पोयम को वो रिसाइट कर रहा है, पढ़ रहा है। और जब वो किसी को पढ़ा रहा है तो वो किसको एड्रेस कर रहा है, वो रीडर को एड्रेस कर रहा है। इसका मतलब टीचर और रीडर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बल्कि टीचर और रीडर के बीच में एक तीसरी पार्टी काम कर रही है, और वह जो पार्टी है वह कौन सी पार्टी है, पोयम है। टीचर और रीडर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बल्कि टीचर और रीडर के बीच में एक तीसरी पार्टी काम कर रही है, वह कौन सी पार्टी है, पोयम है। जब वो इसको पढ़ाता है तो मतलब रिसाइट करता है, पढ़ता है, रीडर उसको सुनता है या रीडर से कहता पढ़ता है, तो वो ये चीज देखने की कोशिश करता है कि ये जो पोयम है, इस पोयम का क्या रिलेटिविज्म है, रिलेटिविज्म क्या संबंध है। अब टीचर अपने आप को अलग कर लिया, एकदम क्रिटिक है, निष्पक्ष कहीं किनारे खड़ा है। अब वो क्या कर रहा है, ये चीज देखने की कोशिश कर रहा है कि पोयम का रिलेटिविज्म क्या है। नंबर 1 पॉइंट, किसके साथ रिलेशन है, रीडर के साथ क्या रिलेशन है। दूसरा चीज वह ये देखता है कि आखिर इस पोयम का क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, किसके ऊपर इंप्रेशन पड़ा है, रीडर के ऊपर इंप्रेशन पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम चीजों को जज करने की कोशिश कर रहे हैं तो बार बार हमारा ध्यान कहां पे जा रहा है, रीडर पर जा रहा है, ना कि हमारा ध्यान कहां पर जा रहा है, पोयम पर। इसके लिए कि हमारी नजर में प्राइमरी चीज क्या हो गया, रीडर हो गया। रीडर का क्या रिस्पॉन्स है, रीडर के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, रीडर का पोयम से क्या रिलेटिविज्म है, ये सब चीजें हमारा डायरेक्ट उस पर जा रहा है। और हमने क्या किया, अपने इवेल्युएशन में रीडर को सेंटर में रख लिया, पोयम को हमने सेकेंडरी मान लिया, उसको दूसरी जगह भेज दिया। जब हम पोयम को दूसरी जगह भेज देते हैं, इसका मतलब जो पोयम एक ऑब्जेक्ट के रूप में था, जो पोयम एक अपना एक पहचान बनाई थी, वह उसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं है जितना इंपॉर्टेंस यहाँ पर हम रीडर को दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अफेक्टिव फैलेसी में जब किसी पोयम को हम इवेल्युएट करते हैं तो वहां पे एरर का है, और वह क्या होता है कि इट्स इमोशनल इफेक्ट अपॉन द रीडर। तो हम उसको इवेल्युएट करते समय ऐसा लगता है कि सेंटर में किसको रख लेते हैं, पोयम को रख लेते हैं, ना कि हम किसको रखते हैं, टेक्स्ट को रख सॉरी रीडर को रख लेते हैं, ना कि पोयम को रख लेते हैं। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इससे एरर हो जाता है। नहीं, इससे एरर नहीं हो जाता है। एरर का मतलब ये हो जाता है कि ये तो इवेल्युएट करने का एक तरीका है, लेकिन ये पोयम को सही से आप इवेल्युएट नहीं कर सकते। वह केवल एक हाँ हिस्सा है, वह हाँ उसका एक इवेल्युएशन का एक तरीका, जो एक कहा जाता है कि टोटल इंप्रेशन, जो एक कहा जाता है कि ओवरऑल ओवरऑल क्या उसका क्या निचोड़ निकला, या आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल प्रभाव उसका क्या पड़ा। तो ये तरीका ओवरऑल प्रभाव को नहीं जन्म दे रहा है। ओवरऑल प्रभाव आपका साइकोलॉजिकली भी होगा, ओवरऑल प्रभाव आपका जो है इमोशनल भी होगा, ओवरऑल प्रभाव आपका ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन में भी होगा। यहाँ पे जो इवेल्युएशन हो रहा है केवल एक ही, इसलिए इसमें क्या हो रहा है कि एरर हो रहा है। ओके सर, थैंक मेरे यू। ख्याल से अब और क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ सर, थैंक यू। तो नाउ यू फाइंड कि ये एक शब्द था जिसको हम लोगों ने लिया, यहाँ पर यह समझने की कोशिश की। नाउ यू सी व्हाट, नाउ यू सी देयर इज अ सेकेंड वर्ड, दैट इज अ एलिनेशन इफेक्ट्स, ALIENATION, एलिनेशन इफेक्ट, EFFECTS, एलिनेशन इफेक्ट। दिस इज अनदर वर्ड। ये जो एलिनेशन इफेक्ट है, इस शब्द को जो अगर कहा जाए कि जिसने एक तरह से एपिक थिएटर का ये हिस्सा है, सबसे पहला पॉइंट कि इट इज द पार्ट ऑफ एपिक थिएटर। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, एपिक थिएटर
थिएटर तो अभी कल हम लोगों ने बात किया था, बट व्हाट इज द एपिक थिएटर? इट इज द पार्ट ऑफ एपिक थिएटर। THEATER होना चाहिए था, मैंने TRE कर दिया, इसको मुझे सुधारना पड़ेगा। THEATER। नंबर 2, इसका जो कॉन्सेप्ट है, जर्मन ड्रामेटिस्ट थे बर्टोल्ट ब्रेच, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। द कॉन्सेप्ट वाज the concept was given by German dramatist Bertolt Brecht. Bertolt, B-E-R-T-O-L-T, Bertolt Brecht, B-R-E-C-H-T, B-R-E-C-H-T, Bertolt Brecht। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट, he adapted, A-D-A-P-T-E-D, he adapted it the Russian formalist of defamiliarization, the Russian formalist concept of defamiliarization, the Russian formalist concept of defamiliarization, defamiliarization। Next, that is the third point. Now fourth point, it is also known as, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट चल रहा, कई बार पूछा जा चुका है। इट इज आल्सो नोन एज estrangement effect or distancing effect, estrangement effect or distancing effect, DISTANCING, distancing effect। Yeah, this is another important point, estrangement effect or distancing effect। Yeah, and यू फाइंड, इसको अब मैं जो भी है अपने वर्ड्स में ही समझाऊंगा। ये इतने पॉइंट्स हैं विच यू हैव टू नोट डाउन। हियर आई जस्ट वांट टू से कि उन्होंने किन किन चीजों को लेकर के ये बातें कही हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, लिख लीजिएगा, पांचवा पॉइंट, दैट इज द critical distance and attitude in the spectators to evoke critical distance and attitude ATTITUD, and attitude in the spectators to evoke critical
distance and attitude in the spectators. You are getting here 3 or 4 points. What the next word I have taken? The next word is alienation effect. मैं सबसे पहले यहीं पर आपको बताऊं, आप या हम सारे लोगों ने वर्ड सुना है एलियन। अगर मैं आपसे पूछूं एलियन का मतलब क्या होता है? एलियनेशन अगर आप कहते हैं नाउन है। फॉरेन सर। अच्छा प्लीज म्यूट, आपके साइड से आवाज बहुत आ रही है। जब आप वर्ड बात करते हैं कि ही इज एन एलियन या मैंने एलियन देखा या एलियन आया था, तो एलियन का जो यहाँ पे मतलब है वो सिंपल सा ये निकलता है कि वह चीज आपके लिए स्ट्रेंज है, समथिंग, ये भी एक सेंस निकल करके आता है। और इसका मतलब ये होता है कि उससे आपकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वह आपसे जुदा जुदा है, एकदम आपसे अलग थलग है। बहुत सिंपल भाषा में अपने वर्ड्स में जैसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एलियनेशन के साथ वर्ड आया हुआ इफेक्ट, इसका मतलब शायद यह जो फ्रेज है, यह फ्रेज यह इंडिकेट करता है कि हमें क्या करना है, एलियनेट करना, किसी को अलग करना है, या किसी के ऊपर जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट से हमें उसको एलियनेट करना है। ठीक है, ये चीज कहाँ पे यूज किया जाता है? ड्रामा में। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को कहाँ पे लाया गया? एपिक थिएटर में लाया गया। तो इट इज द पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज द पार्ट ऑफ एपिक थिएटर। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज एपिक थिएटर, तो आपको सबसे पहली बात ये बताने की कोशिश करना है, एपिक थिएटर इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय बर्टोल्ट ब्रेच। यह एक कॉन्सेप्ट है जो किसके द्वारा दिया गया था? बर्टोल्ट ब्रेच के द्वारा दिया गया था। और एपिक थिएटर क्या है? जब हम एपिक को, एपिक का मतलब महाकाव्य को, जो पोयम की शक्ल में होता है, उसको जब हम थिएटर में परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो वो पार्टिकुलर चीज क्या कहा जाता है? एपिक थिएटर। एपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट है। नाउ यू फाइंड, एक चीज और आया कि द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया? बाय जर्मन ड्रामेटिस्ट बर्टोल्ट ब्रेच। एपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट जर्मन ड्रामेटिस्ट बर्टोल्ट ब्रेच ने दिया है। और कब दिया है? 1920 में दिया है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिक थिएटर? बर्टोल्ट ब्रेच। कब उन्होंने दिया हुआ है? 1920 में दिया हुआ है। कब, कैसे और किस कंडीशन में दिया है? ही एडेप्टेड इट। उन्होंने इस शब्द को, एपिक थिएटर को जो था, सॉरी, जो एलियनेशन इफेक्ट जो शब्द है, एलियनेशन इफेक्ट को उन्होंने एडेप्ट किया। एडेप्ट का मतलब होता है लाना या ढालना। उन्होंने इसको लाया, कहाँ से लाया? ही एडेप्टेड इट रसन फॉर्मलिज्म। रसन फॉर्मलिस्ट जो है, एक थियरी है जो इस पर जोर देती है कि हमें जो है किसी भी चीज को एक अलग ऑब्जेक्ट के रूप में देखना चाहिए, ना कि उसको किसी से जोड़ करके देखना चाहिए। एक अलग उसका अस्तित्व हर चीज का होता है, उसको बहुत ज्यादा कनेक्ट करके नहीं देखना चाहिए। तो रसन फॉर्मलिस्ट का जो कॉन्सेप्ट एक था, वह कॉन्सेप्ट क्या था? डीफेमिलराइजेशन। कौन सा कॉन्सेप्ट था? डीफेमिलराइजेशन। DEFAMILIARISATION। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो एलियनेशन इफेक्ट है, इस एलियनेशन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बर्टोल्ट ब्रेच ने कहाँ से लिया है? एलियनेशन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बर्टोल्ट ब्रेच ने रसन फॉर्मलिस्ट कॉन्सेप्ट डीफेमिलराइजेशन से लिया है। तो आपको यहाँ एक नया शब्द और समझने की जरूरत है। वो कौन सा शब्द है? डीफेमिलराइजेशन। डीफेमिलराइजेशन क्या है? किसी चीज को ऐसा प्रेजेंट करिए कि वो लगे ही ना कि अपनी जिंदगी का, अपने समाज का हिस्सा, वह आपको स्ट्रेंज लगे, डीफेमिलराइज लगे। फेमिलराइज माने परिचित होना, डीफेमिलराइज का मतलब समथिंग स्ट्रेंज, समथिंग ऑड, समथिंग अनयूजुअल। अब होता क्या है, उन्होंने आगे, और मैं ये चीज बताऊं तो आपको कितना शब्द मिला? आपको एलियनेशन इफेक्ट के बारे में पता चल रहा है, आपको किसके बारे में पता चल रहा है? आपको पता चल रहा है
एपिक थिएटर के बारे में, आपको रसन फार्मिलिश का कॉन्सेप्ट डीफेमिलियराइजेशन के बारे में पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है एक और कॉन्सेप्ट है जो एलियनेशन इफेक्ट का, उसी से जुड़ा हुआ, और एक नाम बर्टॉल्ट ब्रेच का। अब उसके बाद क्या कहा जाता है, इसी को और भी नाम, इट इज आल्सो नोन एज इस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट। इट इज आल्सो नोन, एक और शब्द कौन सा, इस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट और डिस्टेंसिंग इफेक्ट। सारे के सारे पूरा यहाँ पे शब्दों का ही खेल है। डीफेमिलियराइजेशन, इस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट, डिस्टेंसिंग इफेक्ट, दीज आर द वर्ड्स व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। और ये सब कैसे होता है, टू इवोक क्रिटिकल डिस्टेंस, कि एक तरह का क्रिटिकल डिस्टेंस हो, एंड एटीट्यूड, किसमें, स्पेक्टेटर्स में। अब आप पूरी कहानी समझिए। आप ये बताइए कि अगर आप जो है मूवी बागबान देखें, मैंने कई बार कहा, या आप देखें, हम देखें, और बागबान मूवी देखते समय जब ये सीन चलती है कि तू यहाँ मैं वहां, जिंदगी है कहाँ, अगर ये गाना चल रहा है, अमिताभ बच्चन दूसरी जगह अलग अलग थलग पड़े हैं, जुदा जुदा से हैं, और ही इज क्राइंग लैमेंटिंग या जो भी, या सॉबिंग। हेमा मालिनी दूसरी जगह है, वो जो है अलग। तो आप ये बताने की कोशिश करिए कि अगर आप स्पेक्टेटर्स हैं, दर्शक हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप उस कैरेक्टर के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उस सीन पर आपकी भी रोने की स्थिति आ जाती है। यू आल्सो स्टार्ट टू सॉब, यू आल्सो स्टार्ट टू लैमेंट, यू आल्सो स्टार्ट टू क्राई, और आपको काफी कभी कभार बहुत दुख होता है उस कंडीशन को देख के, जबकि आप रियल में ये जान रहे हैं कि जो अमिताभ बच्चन है, जो हेमा मालिनी है, दे आर नॉट द हस्बैंड एंड वाइफ। You are seeing them only on you can in theater or on पर्दा। in real life हेमा मालिनी is the wife of धर्मेंद्र। और कभी कभी अगर आप नहीं रोते तो रोने की स्थिति में होते हैं, और बगल वाला आपके जो है काफी कुछ रोने लगता है जो है। तो एक ऐसी वहां सिचुएशन क्रिएट होती है, जो वो सिचुएशन ऐसा लगता है कि यह एलियनेशन इफेक्ट नहीं है, यह इस्ट्रेंजमेंट नहीं है, यह डीफेमिलियराइजेशन नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है यह फेमिलियराइजेशन है। मतलब आप लगता है इतना करीब है अमिताभ के, आप इतना उनके करीब है, लगता है कि आपके घर में हो रहा है। तो जब आप वहां पे रोने लगते हैं, जब आप अमिताभ बच्चन की आहों के साथ उनकी जो है क्या कह सकते हैं कि गम के का हिस्सा बन जाते हैं, शरीक हो जाते हैं, तब आप जो है क्या करते हैं, पाते हैं कि उस मूवी का सही से आपके ऊपर असर नहीं आ पाता। आप किरदार को सही से जज नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय आप इमोशनली उनके साथ क्या कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। फिर आप उनकी इस रोल को नहीं देख पाते कि उस समय जो उनका रोल है, वह रोल जो है क्या है कि कितना अच्छे ढंग से वो प्ले कर रहे हैं। You have only to watch the role of that hero and heroine. You don't need to lament, you don't need to cry, you don't need to weep, because you are there. What? You are the spectator. You are there. What? You are there. आप कह सकते हैं कि समथिंग जज, अगर मैं ये कहूँ। लेकिन जब आप उनके कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप अपनी जज की आइडेंटिटी खो देते हैं, स्पेक्टेटर की आइडेंटिटी खो देते हैं, और ऐसा लगता है आपने उनको अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। तो वो आपके लिए स्ट्रेंज नहीं होते, वे आपके लिए एलियन नहीं होते, वे आपके लिए जाना पहचाना चेहरा होता है, और आपकी सिंपैथी उनसे जुड़ जाती है। तो बर्टोल्ट ब्रेचे कहते हैं कि हमें जो है क्या करना है, रीडर होने के नाते, रीडर के साथ साथ जज होने के नाते, स्पेक्टेटर होने के नाते, वे लोग जो पर्दे पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनसे जो है एलियनेट रहना, उनसे अलग रहना, उनके साथ इतना इन्वॉल्व नहीं हो जाना है कि उनका गम अपना गम लगने लगे और हम अपनी ड्यूटी वहां भूल जाए। हमें क्या करना है, एलियनेशन इफेक्ट करना है। हमें अपने आप को अलग करके तब ये देखना है कि उनका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है, क्या हम उनको सही से जज कर पा रहे हैं, इवेल्युएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरा जो केमिस्ट्री है, whether you find it in any movie, whether you see it in your daily life, if you are you can say कि if you are a judge in a program, अगर आपको किसी प्रोग्राम का जज बनाया गया है, वो तब ये थियरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको वहां पे जज का रोल प्ले करना है। अगर आप
किसी प्रोग्राम में जज है, उसी स्कूल में आपकी डॉटर पढ़ रही है, उसी स्कूल में वो जो है प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही, शिरकत कर रही है, और आपको एक गेस्ट के रूप में, जज के रूप में बुलाया गया है, तो वहां पे आपको ये भूल जाना है कि इस प्रोग्राम में आपकी डॉटर शिरकत कर रही है। क्योंकि जब आपके अंदर ये होगा मेरी डॉटर शिरकत कर रही है, तब आपके अंदर एलिनेशन इफेक्ट नहीं होगा, तब आपके अंदर जो होगा वो फेमिलियराइजेशन होगा कि शी इज माई डॉटर, आई नो हर वेरी वेल। और आपको क्या करना है, जब आप वहां पे क्रिटिक बन जाएंगे तब ये चीजें, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए अगर आप देखिएगा जब कोई पेपर बनाया जाता है तो वहां पे साफ साफ लिखा जाता है, या कोई अगर आप एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है तो ये साफ साफ लिखा जाता है कि आपका कोई नातेदार, रिश्तेदार, घर का, परिवार का कोई सदस्य इसमें अपियर तो नहीं हो रहा। तो दैट इज द बेसिक पॉइंट विच यू फाइंड, दैट इज द बेसिक पॉइंट विच यू सी कि सही से इवेल्युएशन नहीं हो पाएगा। उसका इफेक्ट के लिए, उसके सही से इवेल्युएशन के लिए जो है ये जरूरी है कि ये चीज होना चाहिए। तो आई थिंक कि ये चीजें हो गई। ये पांचवा पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसका पर्पस क्या होता है, टू इवोक क्रिटिकल डिस्टेंस। किसके अंदर क्रिटिकल डिस्टेंस पैदा करना, स्पेक्टेटर्स के अंदर, और उसके एटीट्यूड में जो है क्रिटिकल डिस्टेंस। और इसी चीज को जब ये हो जाता है कि स्पेक्टेटर अपने आप को अलग कर किए रहता है, एक केवल जज के रूप में प्रेजेंट करता है, तभी सही से एलियनेशन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। आई थिंक यू गॉट इट। किसी को कोई समस्या? नो सर। सर एपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट भी क्या बर्टन रसल ने दिया था? बर्टल, हाँ, बर्टल ब्रेच, नॉट बर्ट्रांड रसल, हाँ, बर्टॉल्ड ब्रेच। बर्टल ब्रेच, हाँ, या उन्होंने ही उनका दिया था। या सो आई थिंक कि या सर ये जो बागवा का एग्जांपल आपने दिया सर, ये तो उधर भी सूट कर रहा है जो आपका अफेक्टिव फैलेसी बताया सर, उसमें भी। अनडाउटली देखिए, उसे जज करने के लिए साइकोलॉजिकल इंप्रेशन भी आ रहा है, जिसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी था, इमोशनल आप कह सकते हैं कि इट्स इमोशनल इफेक्ट अपॉन द रीडर, वहां से भी। तो वही वहां तो हुआ, वहां पे जब आप रोना शुरू कर देते हैं जिसका मतलब सबसे ज्यादा इमोशनल इफेक्ट आपको नजर आ रहा है वहां पर, और तब आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एरर करेंगे, उसका सही से इवेल्युएशन नहीं हो पाएगा। तो किसी भी चीज को जैसे जैसे थियरीज डेवलप हुई, जैसे जैसे लिटरेचर आया, तो लिटरेचर को समझने के तमाम अलग अलग नजरिए, तमाम अलग अलग तरीके आए, जिसी में से एक नजरिया आपका कौन सा था अभी जो हमने यूज किया, एलियनेशन इफेक्ट का। एक नजरिया आपका क्या है, साइकोलॉजिकल इंप्रेशन का। एक आपका क्या है, इमोशनल आप कह सकते हैं इफेक्ट का। ये सब अलग अलग तरीके हैं। बस इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया और इस कॉन्सेप्ट से आपका क्या मतलब है। तो हमारी शैली थोड़ा सही है कि हम आपको बहुत ज्यादा लिटरल ना हो करके बहुत प्रैक्टिकल जो हमारी आपकी लाइफ में है उससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल देते हैं, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। आई थिंक यस सर। जी सर, कोई क्लियर ऐसा सर। प्रॉब्लम नहीं, हाँ, कोई ऐसी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं है। तो टुडे वी हैव टेकन ओनली 2 वर्ड्स, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे और इसको समझना जरूरी था। थैंक यू फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल कंपनी एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी passionately. Again, I'm welcoming to all of you on behalf of JS English Literary Society, Allahabad, a well organized institute, literary institute, and hope we will meet tomorrow. और एक दो वर्ड जैसे ही और होगा तुरंत मैं आपका पहला टेस्ट ऑर्गेनाइज कराऊंगा। So it's my request to all of you कि those who are in your contact, those who want to join this class, you can just tell them कि we have started this class. If they are interested, they can join. Otherwise, जितना आदमी अभी पेन लेकर या आप कह सकते हैं इंटरेस्ट लेकर के आई एम डिलीवरिंग लेक्चर, इंटरेक्टिंग विद यू, तो वो रिवीजन में नहीं हो पाएगा। ये एक आप कह सकते हैं कि शुरू का बैच रहता है तो उसमें आदमी बहुत इन्वॉल्व रहता है। ठीक हो।